Good morning, students of class 10. Today we are going to continue with our lesson, and that is Nelson Mandela. It's a long story, it's a long autobiography where we get to know about the Nelson Mandela and how what was the reaction of the people, how people celebrated the occasion when he became the first black president of South Africa. Okay, I hope you have read the book and you have understood. Please go through the questions which I'll give you very soon, because these are objective, and I'll make sure that these will come for your formative assessment. Okay, now I'll move back to the topic where I ended yesterday, and that is page number 21. Okay, last paragraph. In life, every man has twin obligation to the family, to his parents and to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country as well. In these lines, what is the story telling about? What are these lines telling about? That every man has got twin obligations. Obligations means two things which we need to look forward to. First of all, we have every man is subjected to his parents. Whatever decision he'll take for the good of his parents, of his wife and children, that means for his family. But he also has some duty towards his people, his community, his society, his country. So like Nelson Mandela is saying that being a family member, being the father of the family, a person also has the duty towards a country. He should be patriotic enough, he should be ambitious enough, and he should always be taking care of his country. Okay, now we'll turn the next page. Now when we'll come back to page number 22 now. In this we find that Nelson Mandela is explaining why we should have duty towards our country also, because our people are equally important to us, just like our family members, our family, like our parents, like our children, okay, like our wife. Okay, now each man is able to fulfill those obligations. Obligation means duties. Okay, each man is subjected to do his duties according to his own inclination and abilities. ना आपके पास जो भी एबिलिटीज़ है, आपके पास जो कैपेबिलिटीज़ है, आपके पास जो लाइबिलिटीज़ है, जो आपको डेफिनेटली फुलफ़िल करना होगा, और जो भी ड्यूटीज़ है वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन हमारे कंट्री के लोगों को ये सब ऑब्लिगेशंस पे करना, फुलफ़िल करना बहुत इम्पॉसिबल हो जा रहा था, क्योंकि हम लोगों में क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा था? कलर डिफरेंस, रेसिज्म. ओके, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफ़िल, क्योंकि जो हमारे कलर के थे, मतलब जो नेल्सन मैंडेला के कलर थे, उनको बहुत ज़्यादा डाउन ट्रॉडन समझा जाता था, बहुत ज़्यादा ब्लैक, एंड दे वर सब कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द लेस fortunate people, from the low ground people. Okay, so people used to look down them, जो सही नहीं है, because ये कलर तो गिफ्ट ऑफ गॉड है. one should not discriminate according to the color of the person. Okay, now in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. Now South Africa में अगर कोई इंसान अपने चाहे उसका कोई भी कलर हो, अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है अपने आप को ह्यूमन बीइंग बनाने में और अपना एक लाइफ गुजारने में, तो उसे बहुत बुरा माना जाता था और उन्हें पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था. व्हाट इज़ आइसोलेट? मतलब उनको अलग कर दिया जाता था. दिस वाज द बैड थिंग, द नेगेटिव क्वालिटीज दैट स्प्रेडेड इनसाइड द साउथ अफ्रीका, इनसाइड द कंट्री. नाउ इन साउथ अफ्रीका, अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. Now साउथ अफ्रीका में जो अपना ड्यूटी निभाना चाहते थे, उन्हें अपने फैमिली से दूर कर दिया जाता था, and his home was forced to live a life apart, और उनको उनके घर से ही बेदखल कर दिया जाता था. A twilight existence of secrecy and rebellion, उन्हें सीक्रेटली छुपा दिया जाता था और उन्हें रिबेलियस भी बना दिया जाता था according towards the country.
I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. Now in these lines, Nelson Mandela is saying कि उन्हें जब उन्होंने लड़ाई की अपने कंट्री के इमेंसिपेशन के लिए, अपने कंट्री को के फ्रीडम के लिए, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जैसे जैसे वो लोगों के हक़ में बेहतर करना चाहते, वैसे वैसे वो अपनी फैमिली से दूर होते गए। वो उनका जो ड्यूटी था टुवर्ड्स हिज सन, टुवर्ड्स अ ब्रदर, उनका जो ड्यूटी था एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज ए हस्बैंड, वो लोग उन्हें फुलफ़िल नहीं करने देते थे, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक पर्सन। ओके, और वो अपनी कंट्री को सर्व नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। नाउ उनका कहना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि वो फ्रीली बॉर्न थे, उन्हें जब उनका बर्थ हुआ तो वो फ्री थे, उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ओके, नाउ वो भूखे भी नहीं पैदा हुए थे, वो अच्छे घर में पैदा हुए थे, बट बिकॉज उनका कलर ब्लैक था, लोग उनको मिसट्रीट करते। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट, फ्री टू स्विम in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. Now, in these lines, प्लीज़ सी थ्रू दीज लाइन्स, जहाँ पे नेल्सन मैंडेला ये कहना चाह रहे हैं कि वो फ्रीली बॉर्न हुए थे। वो जिस खुशी के साथ और जिस बचपन में जो अपने मम्मी के हट में जाके खेलते थे या फील्ड्स पे जाके खेलते थे, वो फ्री थे, वो फ्रीली स्विम करते थे, फ्रीली दौड़ते थे, और वो कभी भी उन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं हुआ, कोई भी तरह का इम्पोजिशन नहीं हुआ। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई पेरेंट्स, जैसे जैसे वो अपने पेरेंट्स को ओबे करते गए और अपने कस्टम्स को फॉलो करते गए, आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ना तब तक उन्हें कोई भी ट्रबल नहीं आया। इट वॉज ओनली नहीं गॉड की तरफ से, ना ही लोगों ने किसी भी तरह का दबाव दिया उन्हें, बिकॉज वो जो भी ड्यूटीज़ थे वो फुलफ़िल कर रहे थे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ना उनको कुछ टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि उनका जो बॉयहुड है, उनका जो बचपना है, चाइल्डहुड है, वो एक इल्यूजन है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, क्योंकि जब वो ग्रो हुए, जब वो बढ़े, जब उनकी उम्र निकलती गई, जब वो बड़े हुए, यंग हुए, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके फ्रीडम को छीन लिया गया है, छीना जा रहा है। एंड आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और वो इस राइट्स के लिए, और वो अपने राइट को वापस पाने के लिए उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, उन्होंने फ़ाइट करना शुरू किया, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया, बिकॉज़ ये फ्रीडम जो है वो उनका हक है। दिस इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ओके, वी हैव फंडामेंटल राइट्स। ओके, I hope you all know that we have got fundamental rights and duties. Okay, and we also have directive principles of state policies. Okay, now when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first as a student, जब वो स्टूडेंट थे, I wanted to freedom myself, only for myself. जब वो स्टूडेंट थे तो वो खुद को ही फ्री करना चाहते थे। उनके लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और था, कि वो खुशी से यहाँ से वहाँ जा सके, कोई भी तरह के दबाव ना हो उन पे, वो नाइट भी जा सकते हैं, उनको नाइट में अगर लेट भी हुआ तो कोई बात नहीं, और तो उन्हें लगता था कि यही हमारा फ्रीडम है। बट जब वो बड़े हुए और यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल, ना जब उन्होंने ये उन्होंने अपना ओपिनियन बनाया, जब वो अपना थॉट्स एक्सप्रेस किए कि मुझे अब मुझे जो भी करना है वो खुद से करना है,
और मेरा जो बेसिक नीड है वो मुझे फुलफ़िल करना है। मुझे ये भी चेक करना है कि मेरे पास कितना पोटेंशियल है कि मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ और मैं और लोगों से बेहतर बनूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉ लाइफ। बट देन आई स्लोली सॉ लास्ट पैराग्राफ। But then I slowly saw that not only was I not free but my brothers sisters were not free too. ना उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ वही फ्री नहीं है बल्कि उनके ब्रदर्स, उनके सिस्टर्स, उनके जो जितने भी ट्राइब के लोग हैं जो ब्लैक हैं, उन्हें ये राइट्स नहीं मिला है, उन्हें ये राइट्स से बेदखल कर दिया गया। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल मतलब रिड्यूस्ड। ओके, ना उन्हें ये रियलाइज़ हुआ नेल्सन मैंडेला को कि सिर्फ उनका फ्रीडम ही नहीं उनको रिड्यूस किया जा रहा है, सिर्फ उनका फ्रीडम ही नहीं उनका छीना जा रहा है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, बल्कि सबों का फ्रीडम छीना जा रहा है जो मेरे तरह है, जो नेल्सन मैंडेला के, जो यंग नेल्सन मैंडेला के जैसे थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसलिए नेल्सन मैंडेला का नेक्स्ट स्टेप क्या रहा कि वो इन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम। और फिर उनके दिमाग में ये चला कि अब जो मेरे अंदर पोटेंशियल है उसे मैं कैसे भी करके उसको एक्शन में प्रूव करूँगा। एंड दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए और लोगों को अपनी तरफ इन्वॉल्व किए, कन्विंस किए, और इस तरह से उन्होंने फ़ाइट किया फॉर द कंट्रीज़ बेनिफिट। ओके, दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड अफ्रीकाज़ नेशनल कांग्रेस। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my freedom became the greater hunger for freedom. और कुछ टाइम बाद उनका जो ये हंगर है, जो देश को आज़ाद करने के लिए जो उनका अंदर जो भूख थी, जो अपने लोगों को आज़ाद करना फ्रॉम दिस क्लचेज ऑफ, फ्रॉम दिस रिस्ट्रिक्शंस, फ्रॉम दिस डिस्क्रिमिनेशन, वो उस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकलना चाहते थे अपने लोगों को कि अब जो है हमारे लोगों पर किसी भी तरह का दबाव या इम्पोजिशन ना हो। तो इस चीज़ से वो क्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि हमेशा हम उसके लिए फ़ाइट करें। तो वो जो फ़ाइट रहा अब वो उनका खुद का फ़ाइट रहा, वो सिर्फ लोगों का ही फ़ाइट नहीं, लोगों का ही फ्रीडम नहीं, लोगों के ज़रूरत का फ्रीडम ही नहीं था, बल्कि ये अब उनका फ्रीडम हो गया था, ये अब उनका एम्बिशन, एम हो गया था, मोटो हो गया था नेल्सन मैंडेला का, दैट ही इज़ गोइंग टू फाइट फॉर हिज कंट्री, फॉर द पीपल। Okay, now we have completed almost the whole chapter, but only the last class is left. After I'll complete it by tomorrow, and I will also give you MCQs. Okay, please go through that. Before that you also must go through the MCQs of the previous chapter, that is Truly Beautiful Mind, and the poem The Dust of Snow. Okay, because these three lessons will come for your formative assessment. There will be objective type of questions as well as subjective type of questions, and in the subjective type of questions it will be of 1 marks each. I will give you 10 questions, 10 subjective type questions of 1 mark each, and I will give you 20 questions of half marks each in the MCQs. Okay, where you need to where you get full 10 out of 10. Okay, I will give you 20 questions that will be carrying half marks each. So I hope you all got it. Please go through the book, go through the lesson, and whatever written work I am giving you, whatever question and answer I am giving you, please go through that. Thank you so much, children. I want all of you to attend the test, attend that formative assessment. Okay, because these will be added up to the these will get added to the report card. I want all of you, I want the whole strength to be present in the exam time. Okay, on the day of the test. Thank you so much, children. Please go through the lesson. Thank you so much. Take care.